Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum members. Welcome to all of you to Ask Fraternity. I am Dr. Rida Batul and I'm here again with an exceptional webinar. And without any delay, let's start. सबसे पहले आप लोगों को जो है वो आस्क फ्रेटर्निटी प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा गाइड किया जाएगा. So stay tuned with us. सो आस्क फ्रेटर्निटी प्लेटफॉर्म के बारे में पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि ये एबिलिटी स्किल्स नॉलेज फ्रेटर्निटी इसकी जो है फुल फॉर्म है. इट इज़ एन ऑनलाइन अर्निंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म which aims to enhance the skills of the youth living across the world. It promotes the talent of the human, online education for higher education as well, teaching workplace skills and explore new interests that provide certificate courses and of course the diploma courses. Ask Fraternity offers free international webinar workshops as well as paid short courses. Let's talk about the vision of Ask Fraternity. Our vision is to help people achieve their goals by creating solutions and practical techniques through our training and design life changing products to ensure the holistic transformation of people. We provide flexibility in a way कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं. आप कि बीइंग अ ट्रेनर आपके ट्रेनर का हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअली फोकस होता है, ना सिर्फ ट्रेनर का बल्कि जो भी हमारी पूरी टीम है. और मोटिवेशन आपको इस तरीके से मिलती है जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे कल को आप भी जो है वो काम कर सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. And of course it's not less than an inspiration for all of you. What is the motto of Ask Fraternity? Creating new leaders by nourishing and promoting the talent of a common people is the main purpose of Ask Fraternity. And what's the slogan of Ask Fraternity? That sometimes choosing the different path from others does not mean isolating yourself. It means you know who you are. What a beautiful line written here. Okay, let me introduce to you with the Ask Global Tally Clinic, which is another intervention of Ask Fraternity. And what's the goal of this Tally Clinic? It is a revolutionary platform that aims to revolutionize the healthcare by connecting patients with healthcare professionals worldwide. And our mission is to provide accessible and convenient virtual consultation, follow up appointments, and of course, the medical advice with the diverse team of surgeons, various doctors, clinical pharmacists, physiotherapists, dietitians, nurses, and of course, psychologists. We are able to strive to deliver the comprehensive and personalized care to our patients globally. Our goal is to make healthcare accessible to all, anytime and anywhere. So, join us on this transformation journey towards accessible and global healthcare. अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. Likewise, just like Ask Fraternity, Ask Global Teleclinic also holds a slogan. And what's the slogan? That your health our priority. It emphasizes our commitment to prioritizing the health and well-being of our patients, ensuring they receive the highest quality care and support. Join us in our journey to better health together. What services you can provide on this platform?
And of course, we are providing right now. We provide telemedicines, online consultations, medical advice, e-prescription, lifestyle medicine and guidance, online sick leaves and certificates, awareness diseases related workshops and counseling, maintain health records, and mental health and medical billing as well. You can also check our official website after this session. So, what's the mission? Being the part of Ask Fraternity, I would better let you know the mission that our mission is to change life. We provide successful career. If you are reviewing the job, you can check our platform. If any vacancy is there, you can also join us. And of course, it's a safe environment for females especially. I have been working with Ask Fraternity from last 3 years, and I have never found any sort of unethical activity here, alhamdulillah. And in this way, Ask Fraternity is playing their role in decreasing the unemployment rate, and we believe in taking actions. And of course, in this way, we have inspired many, and most of our students are working worldwide. And you can also check the feedbacks on our social media handles later. Let's talk about our executive team. So, a leader is like a shepherd. He stays back the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the others follow, not realizing that all along they are being directed from the behind. So, Dr. Aksar Abbani, she is the entrepreneur, she is the founder, and here we have Mr. Zain Khan. He is the finance manager, and Ms. Arshia Kainat. She is the CEO and management controller. And of course, I forgot Mrs. Zanhan is also the vice president. Okay, here you can see our profile. We are now registered with most of the authorities, like we have the authorities of UAE, CPD in Pakistan, FBR, SECP, and many more. Okay, this is the second branch of Sharjah. We have okay. We are now registered with UAE, in terms of providing many webinars and various diploma courses, and Sharjah Publishing City. There is another branch here. The address is mentioned, and the registration number as well. Alhamdulillah, Ask Fraternity is in collaboration with them. Ask Global Teleclinic is registered by the Government of Pakistan. Dr. Aksar Ambani is founder and director. Mr. Zain Khan is MD, and Miss Arshia Kainat, she is the CEO. If you want to visit our office, you can go for our Islamabad and Lahore branch. And here the complete website address has been given here, so that it will be easy for you to access. Let's talk about the accreditations that Ask Fraternity holds. Medic Pro is the registered educational institute in UK, specifically England and Wales. Both countries belong to UK. Mr. Afaq Ahmed is the governing body and CEO here. They have various head offices, and the notable head office here in
Pakistan, and those who belong to Sindh, Karachi can also visit it. And other rest of the offices are in UK and India as well. Okay, let's talk about our collaborative partners, China. We are in collaboration with the Go Study organization in China, and our business partners also have collaborations with all these universities mentioned here. And by this platform, you can also join various webinars and workshops related to various topics for the knowledge seekers through this platform. ओके, इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे है, आप इसको भी जो है विजिट कर सकते हैं बाद में. Okay, in UK there is Right Vision Training Center, which is registered in UK. Mr. Asjad Sheikh is the governing body, and their visiting offices in Lahore. And the New Era Learning is also um, the platform of UK, and we are also in collaboration with this platform. So you can also check the official website after this webinar. Okay, we are in collaboration with the Karobar Clinic. Mr. Tayyab, Dr. Tayyab Kazi is the director here, and at this platform, you can find various um, opportunities, being being the part of this Karobar clinic, as well as being a patient or a customer. It's a leading technology company, and they specialize in delivering the innovative IT software solutions, development services, and professional support tailored for business in the dynamic tech landscape. And above all, their visiting office also locates in Lahore, and they also run the institute, and where you can get educated related to these skills mentioned here, like digital marketing. You have website development, and of course the phone applications as well, and many more. Okay, this is a notice for affiliation. If you We are open for affiliations, and affiliation is open for interest via Ask Fraternity. If you are running an institute, if you are a trainer, a freelancer, an influencer, if you run a clinic or healthcare center, if you are giving services as an online and physical relevant body, then you can join us. What's our requirement? Okay, you need to provide us your requirements, the purpose, the vision, desires, and profit margin in your proposal. And you can also contact us via this WhatsApp number. Okay, let's talk about the Ask Fraternity programs. We are offering till date. We have diabetes training program, hypertension management program. Okay, members, you can also go through. You can also acknowledge the program durations. Okay, like a hypertension management program is of 15 days, and rest you can check. Ultrasound training program, human vital training program, pharmacy technicians. Then we have the gynecology and obstetric training programs, and ECG interpretation, cardiology training programs, spoken English programs. Then we have the X-ray complete range, and this training is around 3 months. And of course, many more programs in queue. Here you can get the e-certificate, experience letter, letter of recommendation. But if you need a hard copy, you have to pay a little bit extra. I hope you understand that.
Okay, let's talk about our diploma programs. We run the diploma in general surgery, clinical nutrition, diploma in diagnostic ultrasound, and you can also check the eligibility criteria and the creditors. The diploma in clinical psychology, diploma in aesthetic medicine, diploma in the nurse practitioners. The diploma in the clinical dermatology, Alhamdulillah, we are running the second batch. And diploma in public health and diploma in emergency medicines. And those students who belong to these diplomas can also help others via their feedbacks. And then we have diploma in family medicine, and last but not least, diploma in the sports nutrition. Then these are the eligibility criterias related to all the diploma programs. Then we have this official certificate ID वेरिफिकेशन. यू कैन गो चेक ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट. आपको जो भी सर्टिफिकेट मिले आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं. अपना आईडी नंबर यहाँ पे एंटर करें और फिर आपका नाम और ओवरऑल जो बायोडाटा है वो आपको हेल्प करेगा आपकी सर्टिफिकेशन की अप्रूवल के लिए. Okay, approved as fraternity certification via all these countries mentioned here, and Alhamdulillah, we are globally approved. Okay, let's talk about our membership card. अगर आप हमारा membership card लेते हैं जिसकी कॉस्ट जस्ट 3K है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. आपको ऑल ओवर और थ्रू आउट द ईयर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है हमारी पेड प्रोग्राम्स पे. आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इसके अलावा आपको कार्ड जो है वो घर पे हार्ड फॉर्म में डिलीवर भी होता है. ई लाइब्रेरी भी है हमारी, आप इसका भी कार्ड ले सकते हैं. और वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से जो है वो डिफरेंट बुक्स जो है वो अवेल कर सकते हैं जो आपको नॉर्मली मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं. यहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाएंगी. Alhamdulillah, this is the profile of Fast Fraternity, and we are looking forward to you to join us, being a trainer, being a collaborative partner, as well as being a student. Okay, thank you so much. Okay, let's move on to our webinar for today. Still, you have any questions? You have your chat box. You can go for that. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. It's the cardiovascular medicine free session by trainer Dr. Rida Batul, and let's talk about this. Okay, जो कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन हैं इसको जो है वो डिफरेंट वेज में कवर किया जा सकता है, बट दिस विल बी योर session like the comprehensive session on the cardiovascular medicines, क्योंकि इतनी diseases हैं उनको कवर करना जो है वो itself एक टास्क है. बट या आई विल try my best to help you people in the guidance, and also if you want this training session then you can also join us. Okay, first we will discuss the introduction to the CVS, and I will discuss a brief anatomy and physiology of CVS. Then we will discuss the CVS vitals, then CVS diseases, in the prevalence of the CVS diseases. Then we will discuss the CVS medicines, where we will discuss the major drug classes and their clinical applications. Then I will give you the guidelines related to emerging trends in the CVS pharmacotherapy. And then last but not least, there will be the question answer session and discussion for all of you. Okay. CVS, जो लोग यहाँ पे नॉन मेडिकोस हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, तो उनके लिए कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि हमें ज़िंदा रखते हैं,
जैसे ब्रेन वाला सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इसी तरह हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसमें दो चीज़ें आती हैं। हमारा हार्ट आता है, हमारा दिल और हमारी ब्लड वेसल्स, जो ये पाइपलाइंस आपको ब्लू और रेड कलर की नज़र आ रही हैं। इसका काम भी कोई होगा तो इसका काम क्या है कि ऑल ओवर द बॉडी ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवाना, न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं या पीते हैं उनको पूरी बॉडी में भेजना, और इसके अलावा जो हमारे हॉर्मोन्स हैं जो ब्लड में रिलीज होते हैं, या ऑटोक्राइन ग्लैंड से या पैराक्राइन ग्लैंड से, या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उन सबको उनके जगह पे पहुंचाना और बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करना। हमारे हार्ट का काम क्या है? Okay, members, thank you for waiting. We have ओके, इसमें हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे जो हमारी मेडिसिन्स हैं, लाइक हमारा जो हार्ट के रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं उसको हमने देखना है, और इसके अलावा जो हमारा जो ब्लड है वो किस तरीके से जो है वो
शो होता है। ओके, नेक्स्ट। और इसमें जो है वो हमने अपने हार्ट के स्ट्रक्चर को देखना है एक दफ़ा। और इसमें हम जो है ना हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे। लोकेशन एंड एक्सटर्नल फीचर्स अगर हम देखें तो हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ पे रिजाइड करता है। मीडियास्टिनम, जो एक स्पेस होती है हमारे लंग्स के दरमियान में। और जैसे हम कोई ब्लॉक्स जो है वो देखते हैं तो एक ब्लॉक है, उसकी जगह रह जाती है अगर, या कोई पजल है तो उस पजल में वही चीज़ फिट आएगी जो उसकी शेप की होगी। लाइकवाइज जो मीडियास्टिनम है वो एरिया, वो हमारे हार्ट को वहाँ पे फिट कर देता है, इस तरीके से उसकी शेप है। और ये बंद है एक सैक के अंदर, एक जैसे शॉपिंग बैग होता है उसमें कोई चीज़ बंद हम कर देते हैं या कोई लेमिनेशन होती है, वैसे हमारे हार्ट के ऊपर एक सैक है जिसको पेरिकार्डियल सैक कहते हैं, लंग्स के दरमियान। हार्ट का एपेक्स और बेस होती है। और जो हार्ट की बेस होती है बेसिकली वो हार्ट का जो एपेक्स है, दिस एरिया, दिस इज द एपेक्स, ये जो आपको नीचे नजर आ रही है नोक सी, वो। और ये जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को टच करती है जो हमारी रिब्स होती हैं। और जो बेस है वो टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है। नेक्स्ट। ओके, इसमें अगर आपने कुछ भी पूछना है साथ साथ तो काइंडली आप लोग पूछते जाएं। अगर कोई भी इशू आता है आप लोगों को तो ये आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा डिफरेंट वेज में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी। हार्ट के चैम्बर्स और उसके वेल्व्स की बात करते हैं तो हमारा हार्ट जो है उसके चार चैम्बर्स हैं। ये राइट वाला, राइट जो आपको ब्लू साइड नज़र आ रही है उसमें ऊपर वाला है राइट एट्रियम, और नीचे वाला है राइट वेंट्रिकल। और इसी तरह जो हार्ट के लेफ्ट साइड है रेड कलर के ऊपर वाले को हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले एरिया को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो ऊपर वाले दो है एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं। अब ये कनेक्टेड हैं डिफरेंट पाइपलाइन से। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी वेन होती है उसे सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं, और उसकी दो टाइप्स हैं। नीचे उसके ना, उसके नीचे भी एक पाइप है, उसको इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। सुपीरियर वेना कैवा हमारी बॉडी के अपर एरिया से ब्लड को कलेक्ट करता है, हमारे शोल्डर्स, नेक, हेड, चेस्ट रीजन। जो कि इंफीरियर वेना कैवा जो है वो हमारी बॉडी के लोअर एरिया से ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेके आता है। लाइकवाइज हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी वे आर्टरी है वो है एओर्टा। इसका काम है हार्ट से खून लेके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, और फिर आगे से इसकी आर्टरीज वगैरह आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पीछे नज़र आ रही हैं पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज। ये चीज़ें भी समझने वाली हैं कि हमारे हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। एक दफ़ा जो ब्लड होता है ब्लू कलर वाला, ऑक्सीजन वाला, वो मूव करके चला जाता है हमारे लंग्स में। और लंग्स में जाने के लिए उसको पल्मोनरी आर्टरीज का सहारा लेना पड़ता है। आपको बड़ी सी नज़र आ रही होगी ब्लू कलर की, जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रही है बिल्कुल आगे। और फिर जब ब्लड ऑक्सीजन आ जाती है खून में तो वो पल्मोनरी वेन्स जो कि हमारे हार्ट के पीछे आपको नज़र आ रही हैं, दो राइट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट एट्रियम के ऊपर देखें, और दो लेफ्ट साइड पे भी होंगे, वो सारा का सारा ऑक्सीजन वाला खून लेके आती हैं हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में। और उसके बाद जो है वो उसको आगे सर्कुलेट करती है। नेक्स्ट प्लीज़।
ओके। तो अब हम बात करते हैं ब्लड वेजल्स की। तो ये ब्लड वेजल्स जो हैं वो दो तरीके से काम कर रही होती हैं। एक हार्ट से जो है वो लेती हैं ब्लड और पूरी बॉडी में फिर जो है सर्कुलेट करवाती हैं, वो होती हैं आर्टरीज। और फिर जो हमारे ये जो आपको नज़र आ रहा है दरमियान में कैपिलरी बेड, ये बेसिकली हमारे हर ऑर्गन के हर टिश्यू और हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मीन्स के हर एक सिंगल सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जो है ये कैपिलरीज का काम है। फिर वो हमारे उन टिश्यूज़ में से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसको वापस वेन्स तक भेजना, जो कि फिर उस गंदे खून को यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को हार्ट में लेके आती हैं और फिर हमारे लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देती है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है ना, तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वेन्स हमारे डिफरेंट टिश्यूज से लेके तो लंग्स तक लेके जाती है। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे टिश्यूज में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है जो हम खुद ही एनवायरनमेंट से लेते हैं वो उनको आर्टरीज के ज़रिए मिल जाती है, और फिर आगे से जो खून होता है उन्होंने वेन्स में चले जाना है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके चले जाना है। सो ये बेसिकली ये इस तरीके से काम कर रहा होता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट काइंडली, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हर जगह पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो ब्लड हार्ट का ब्लड है, चाहे वो लंग्स का है, चाहे वो हमारे टिश्यूज़ का है। ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाएगी उस टिश्यू को और कार्बन डाइऑक्साइड उस पाइपलाइन में आ जाएगी। अब देखेंगे खून है तो वो तो चलता रहेगा और ये जो पाइप है वो भी अपनी जगह पे रहेंगे, तो वो खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती जाएगी और ऑक्सीजन जो पीछे से आ रही है वो हमारे इर्द गिर्द टिश्यूज को मिलती जाएगी। ठीक है, ये जस्ट पिक एंड ड्रॉप वाला सिस्टम होता है और ये इस तरीके से हमारा जो है वो ब्लड चाहिए ओवरऑल सर्किट चल रहा होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, खासतौर पे जो यहाँ पे नॉलेज सीकर्स के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं तो काइंडली पूछ लें, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक होती हैं और अगर आपकी यही क्लियर नहीं होंगी देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Okay, let's talk about one of the most important functions of the heart, which is the conduction system of the heart. अब हमारा हार्ट जो है पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहेगा तो हम भी ज़िंदा रहेंगे, हमारा हार्ट बंद हो गया तो हम भी हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो हार्ट में नेचर ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर है। अब हार्ट का अपना कंडक्शन सिस्टम है। अब ये समझ लें जैसे होते हैं ना हमारे घर पे यूपीएस होते हैं, आप ये समझ लें कि ये हमारे हार्ट का अपना यूपीएस है। पूरी
जो है वो डिस्कस करते हैं ह्यूमन वाइटल्स को। सो लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन वाइटल्स। तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारी जो वाइटल साइंस होते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो क्या चीज़ है बेसिकली। वो जो है हमें ये चीज़ बताती है कि हम जब भी देखें, जो भी आपकी बीमारी है, जिस भी नौयत की है, आपके वाइटल साइंस अगर ठीक हैं तो आप ठीक हैं। ओके। और वाइटल साइंस में है क्या क्या, आपका हार्ट रेट है, आपका पल्स रेट है, ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपकी ईसीजी हो सकती है। अब हार्ट रेट को और पल्स रेट को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। हमारी जो दिल की धड़कन होती है उसको हार्ट रेट कहते हैं, हमारी जो नब्ज़ होती है उसको पल्स रेट कहते हैं। दिल की धड़कन तेज़ होगी तो हमारी नब्ज़ भी तेज़ होगी, बट ऐसा भी कभी होता है दिल की धड़कन तेज़ हो और नब्ज़ हमारी तेज़ ना हो, ऐसे केसेस भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिहाइड्रेशन। ओके। तो बहुत सी ऐसी कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। अब ये बताया हुआ है कि एडल्ट में कितना हार्ट रेट होना चाहिए, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। और इसके बाद जो एथलीट्स होते हैं उनमें जो है वो वेरी करता है, चिल्ड्रन में वेरी करता है और इन्फेंट्स में भी वेरी करता है। इसके अलावा जो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि हमारी जो बहुत सी दवाइयाँ हैं वो ब्लड प्रेशर को ही कम या ज़्यादा कर रही होती हैं। ओके। तो इसमें जो है मेनली हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर नेचर की तरफ से है वो है सिस्टोलिक, यानी जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, इसको हम पंजाबी में ऊपर वाला या उर्दू में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120 मिलीमीटर ऑफ एजी होना चाहिए। और दूसरा जो है वो लेस देन 80, और एलिवेटेड होगा दैट मैं आपको बता दूंगी 130 से 139 और 80 से 89, और भी 140 या बाय 90 से ज़्यादा, और ईसीजी होती है। इसके बाद हमारे पास है प्रेवलेंस की पूरी दुनिया में बीमारियां कितनी ज़्यादा प्रेजेंट हैं। आपको ये एक स्क्रीन में आपको ये एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, जिसमें मेंशन्ड है 43% पूरी दुनिया में हार्ट की प्रॉब्लम्स है। कॉरिनरी हार्ट डिजीजेज, हमारी जो दिल के अंदर से एक आर्टरी निकलती है, यानी एक पाइप जो कि दिल को खून देता है, उसके मसले होते हैं 43%। फिर स्ट्रोक होता है जिसमें हार्ट को खून मिलता ही नहीं है। इसके बाद जो है हमारे पास हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, फिर हाई ब्लड प्रेशर के, फिर आर्टरीज की डिजीजेस, और इसके अलावा बाकी जो बच जाते हैं उससे आगे। ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी जो है वो प्रेवलेंस भी देख सकते हैं कि कितने लोग पूरी दुनिया में हर साल उनकी डेथ होती है। जैसे कि स्ट्रोक से 6.6 मिलियन लोगों की पूरी दुनिया में डेथ होती है। ओके। अब जो है हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के बड़े जो शहर हैं, 53 सिटीज़ का जो डेटा लिया गया उसमें पता लगाया गया कि 17.5% जो पॉपुलेशन है वो हार्ट की पेशेंट है, और उसमें से भी हर साल जो रेट है वो इंक्रीज करता जा रहा है, यानी 1 लाख में से 684 लोगों को जो है वो ज़रूर बीमारी होती है हार्ट की। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो हमारा है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, तो वो भी पाकिस्तान में जो इसकी डेथ्स हैं उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। 357 जो पेशेंट्स हैं फ्रॉम 1 लाख उनकी डेथ हो जाती है। ओके। अब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की। तो सबसे पहले हमारे पास हार्ट के ना डिफरेंट एरियाज़ हैं। ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि पेरिकार्डियम हमारे हार्ट के बाहर वाला एरिया होता है, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, ये कुछ इश्यूज आते हैं, हमारे मैकेनिकल इश्यूज आते हैं हमारे हार्ट में। फिर मायोकार्डियम हार्ट के दरमियान वाली जो एक लेयर होती है, हार्ट जिसे पंप करता है, उसके में इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज है, मायोकार्डाइटिस है, और कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है।
और इसी तरह ये आगे देख लें डिजीज़ किस नौयत की हैं, इटियोलॉजी यानी कि इसकी वजह। फिर ब्लड वेसल है, वस्कुलाइटिस हो जाएगा ब्लड वेसल के स्वेलिंग से। फिर आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, प्लाक जमा हो जाता है, एन्यूरिज्म और हाइपरटेंशन। इसके बाद है एंडोकार्डाइटिस, अंदरूनी जो हिस्सा होता है हार्ट का वो है। रूमेटिक हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, इन्फेक्टिव का एंडोकार्डाइटिस और माइट्रल वेल प्रोलैप्स जो कि दिल के वॉल्स का हिस्सा प्रॉब्लम होती है। यस, काइंडली नेक्स्ट कर दें। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड कर दें इसमें। और इसमें जो है ना हम आगे डिस्कस करते हैं सीवीएस की मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और क्लॉट फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अब इसको ठीक करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ हैं, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज, बीटा ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, जो हमारे हार्ट को प्रिवेंट करती हैं ब्लड प्रेशर के राइज होने से और हार्ट के स्ट्रोक और हार्ट अटैक को भी कम करती हैं। फिर हमारे पास है स्टैटिन्स, जो कि वो दवाइयाँ होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर जो शरियानें होती हैं उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल चर्बी जमा हो जाती है उसको निकालते हैं। और इसके बाद अगर कोई क्लॉट बन जाता है तो उसके लिए एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल है, ये क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देते और पेशेंट को स्ट्रोक से भी बचाते हैं। और इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक उससे बचाते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। और इसमें जो है मेनली हमने इन तीनों चीज़ों को ही कंट्रोल करना है तो हमारे हार्ट की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं एक्यूट कार्डियक इवेंट्स को ठीक करने वाली दवाइयाँ। नेक्स्ट कर दें काइंडली। और इसमें जो है हमारे पास है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं जैसे कि हार्ट अटैक हो गए, एरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट फेलियर, उसको ठीक करने के लिए। तो एक दवाई का नाम सुना होगा आपने, एंजाइसिड, या ठीक है। तो वो दवाई हम जुबान के नीचे रखते हैं और पेशेंट अचानक जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये कॉरोनरी आर्टरी को डायलेट करती हैं, हमारे चेस्ट की जो पेन होती है, एंजाइना पेन, जिसको हार्ट अटैक से पहले जो पेन हो रहा होता है जबड़े में, लेफ्ट शोल्डर में, चेस्ट में, उसको ठीक करती है। फिर है बीटा ब्लॉकर्स, मीटोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल, बाइसोप्रोलोल, ये हमारे ऑक्सीजन की जो डिमांड है हमारे हार्ट तक उसको कम करती है, ठीक है। जैसे हम एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमें कितना सांस चढ़ा होता है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जबकि ये दवाइयाँ जो हैं वो हमारे हार्ट को रिलैक्स करती हैं और ऑक्सीजन की डिमांड को भी कम करती हैं। और ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। वही है फिर आगे थ्रोम्बोलिटिक्स, जो कि हमारे ब्लड का क्लॉट बने हुए हैं और उनको तोड़ना है, इन्होंने ब्रेक डाउन करना है। एंटीप्लेज है और स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये बहुत ज़्यादा ये एंटीप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में इंजेक्शंस की फॉर्म में। नेक्स्ट कर दे काइंडली। और इसमें फर्दर हम मेडिसिन को स्टडी करेंगे। आगे आती है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक कंडीशंस, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गई, इसमें ज़्यादातर या हार्ट फेलियर या एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं। तो इसमें हमारे पास हार्ट फेलियर्स को ठीक करने के लिए अच्छा मेंबर्स, एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फ़र्क होता है। हार्ट अटैक में हमारे दिल को खून नहीं मिलता, खून की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती और हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। जबकि हार्ट फेलियर में हर चीज़ ठीक है लेकिन दिल पंप ही नहीं करता, ठीक है, हार्ट फेल हो गया, दिल का काम पंप करना है वही फेल हो गया। इसके लिए हम डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और डाइजॉक्सिन देते हैं हार्ट को अच्छे से पंप करवाने के लिए। और इसके बाद जो हमारी वो होती है ईसीजी, अगर वो ख़राब हो गई है तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अमायोडेरोन, लाइडोक्विकेन है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा क्विनीन है, और भी बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं इसकी, अभी मेरे माइंड में नहीं है। और ये कार्डियक अरेस्ट को भी ठीक करती हैं। नेक्स्ट कर दें काइंडली।
और इसमें नेक्स्ट जो है ना, हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। और इसमें मेडिसिन्स में जो है हमारे पास कि हमने कैसे पेशेंट की क्वालिटी को ठीक करना है लाइफ की, उसमें दो दवाइयाँ मेनली है कि हमने हमारी बॉडी में से ज़्यादा हो जो फ्लूइड है, पानी है, निकालना है, ताकि हमारे हार्ट फंक्शन अच्छे से कर सके। डायूरेटिक जिसको वाटर पिल्स कहते हैं। दूसरा स्टैटिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेजर जो क्लासेस हैं। इसमें वो आपको बता दिया, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ हैं, एंटी एंजाइनल और हार्ट फेलियर मेडिकेशंस हैं, फिर एंटी कोआगुलेंट्स हैं यानी ब्लड को क्लॉट करने से रोकेंगे और प्लेटलेट के फंक्शन को कम करेंगे, और लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं। ये आगे कर दें। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम डिस्कस करते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, अब आप मुझे बताएं कि ब्लड प्रेशर जो है, आपको मैंने बताया नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का कोई इश्यू आ जाता है वो कितना होता है। किसी को पता है इस चीज़ का, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नंबर्स, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना हो सकता है? 120/80। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा, ये यस ठीक है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 से ज़्यादा रहता है या इतना रहता है, उनको हम कहते हैं उनको ब्लड प्रेशर है। ठीक है, हाइपरटेंशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ मेंबर्स ध्यान से समझिएगा। हमने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दो चीज़ों का सहारा लेना है। एक तो हमने हार्ट रेट कम कर देना है। ठीक है, यानी दिल की धड़कन कम कर दो, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या फिर हमने क्या करना है, कार्डियक आउटपुट एक होती है, उसको कम कर देना। जितना ज़्यादा हमारे खून में पानी होगा उतनी ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगी, और उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है। अब जितनी भी दवाइयाँ आपके सामने मेंशन्ड है, इनमें से कुछ हार्ट रेट को कम करती हैं, कुछ कार्डियक आउटपुट को कम करती हैं। अब जैसे बिल्कुल साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट अपर एरिया पे, एस इनहिबिटर्स, ये दवाइयाँ क्या करती हैं कि हमारे हार्ट का जो एक मैकेनिज्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाला, उस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट बनना होता है एंजियोटेंसिन 2, उसको नहीं बनने देती, एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देती, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 जब बनेगा तो वो हमारे हार्ट रेट को भी ज़्यादा कर देगा और हमारे कार्डिक आउटपुट को भी ज़्यादा कर देगा, वो हमने नहीं होने देना। ठीक है। तो और एक और चीज़ होती है कि हमारी जितनी ज़्यादा जो ब्लड वेजल है, पाइप है, वो जितने ज़्यादा सिकुड़े हुए होंगे यानी कंस्ट्रिक्टेड होंगे, उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। तो हमने तीन चीज़ों को कंट्रोल करना है, हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट और रेजिस्टेंस जो होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जो एज इनहिबिटर्स होते हैं वो कर देते हैं वेजोडाइलेशन, यानी हमारे जो पाइप है जिससे खून गुजर है वो खुल जाता है, और आसानी से खून ज़्यादा ज़्यादा चला जाएगा। जैसे आपके पास एक पाइप है पानी वाला, आप उसको दबा दोगे तो प्रेशर से आगे जाएगा, लेकिन जब आप उसको उसका हाथ हटा दोगे उस पे से, तो वो आराम से पानी गुजरेगा। ऐसे ही तो ये दवाइयाँ हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट फेलियर और जो हार्ट अटैक होते हैं उनको ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स हमारे खून में से पानी निकाल देंगे
और फिर हमारा कार्डिक आउटपुट कम होगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, उनके अंदर हम सार्टन फैमिली है, लो सार्टन, वेल सार्टन, वो भी एंजियोटेंसिन 2 को जो है वो उसके फंक्शन को रोकेंगे। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारी ब्लड वेजल्स को जो है वो डायलेट करते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स हमारे हार्ट रेट को कम करते हैं। इसके बाद एंटी एंजाइनल दवाइयाँ हैं जो कि हमारे जो हार्ट अटैक के पेशेंट है उसको ठीक करती है। नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है। इन्हें जस्ट क्या करना है, हमारी जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की जो डिमांड है हमारे हार्ट तक उसको भी कम कर देना। इसके अलावा हमारे पास एक नई दवाई भी आई है, रेनोलेजीन। ये भी आजकल जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा हमारे पास एक दवाई है सेक्यूबिट्रिल वेलसार्टन के साथ, जो हार्ट फेलियर में दी जाती है। और आइवाब्रेडीन जो है ये हार्ट रेट को कम करती है और हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करती है। नेक्स्ट प्लीज। आगे हमारे पास है एंटी कोगुलेंट्स और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। अब ये एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ क्या करती हैं हमारी बॉडी में, आपको पता है 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल, और कौन कौन से होते हैं आप बता सकते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं और तीसरा आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब जो हम एक दवाई खाते हैं जिसको हम कहते हैं एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्रिन तो एक ब्रांड है ना, एक ब्रांड होता है लोप्रिन, जिसमें सिर्फ 75 mg डिस्प्रिन वो होती है, ठीक है। यस, वाइट ब्लड सेल्स, गुड। जो डिस्प्रिन का एक ब्रांड है लोप्रिन, डिस्प्रिन एक ब्रांड है 375 mg, बट लोप्रिन में कम एस्प्रिन होती है। तो लो डोजेस में जो एस्प्रिन है वो हमारा एंटी प्लेटलेट का काम करती है, खून को पतला करने में काम आती है। इस तरह कुछ दवाइयां हैं, क्लोपिड्रोग्रिल है, प्रेसुग्रिल है, और इसके बाद है टाइकाग्रिलॉर। ये दवाइयाँ जो हैं वो भी हमारे खून को पतला करने में हेल्प करती है। इसके बाद जो अगर खून तो पतला हो गया, अब जो क्लॉट बन चुके हैं वो क्लॉट को बनने से रोकने वाली दवाइयाँ, वारफरिन, ठीक है। और वारफरिन का एंटेगोनिस्ट है विटामिन के। विटामिन के खून को जमाता है, वारफरिन खून को जमने नहीं देता। और इसके अलावा हमारे पास DOS है, एपेक्सिबान है, इसके बाद रिवारोक्साबान है, और डाइबाग्रेट्रान। ये डिफरेंट दवाइयाँ हैं, ये भी एंटीकोगुलेंट है। इनका काम है कि हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं बनने देना, ठीक है। और एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट का डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। वो मेडिकेशंस जो कि हमारे ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती हैं, ग्रो नहीं करने देती, वो होती है एंटीकोगुलेंट, और प्लेटलेट हमारे खून को पतला करती हैं। और ये आगे यूजेस लिखे हुए हैं, DVT, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलोसिस वगैरह में यूज होते हैं। फिर लास्ट पे हमारे पास है लिपिड लोअरिंग ड्रग, जो हमारी बॉडी में से चर्बी को ख़त्म करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बनने देती। स्टैटिन ड्रग्स, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ठीक है। ये क्या करती है कि एंजाइम होता है HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इसको हमने इनहिबिट कर देना है, ठीक है। और इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या है, कम हो जाता है। इसके अलावा एक और एंजाइम है TCSK9, उसको भी इनहिबिट किया जाएगा एलिरोक्यूमाब और ओवोलोक्यूमाब दवाइयों से। ये भी आजकल हमें चर्बी कम करने में हमारी बॉडी के हेल्प करती है। और मेंबर्स याद रहे, ये वो दवाइयाँ नहीं है जो कि पतला होने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये हमारे सेल्स के अंदर जो चर्बी जमा हो जाती है ना, टिश्यूज में, सेल्स में, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये ओवरऑल जो स्टबन फैट है उसके लिए नहीं, ये हमारी बॉडी के इंटरनल जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली उसको कम करने के लिए। फिर फाइब्रेट्स है, नायासिन है, और एजिटिनिब। अब गाइडलाइंस फॉर द CVS मेडिसिन। हाइपरटेंशन को जो कंट्रोल करने की गाइडलाइंस है, हमें कैसे पता चलता है
किस पर्सन को कितनी दवाई देनी है, कौन सी देनी है, कैसे देनी है। तो JNC 8 गाइडलाइंस है, 8 जॉइंट नेशनल कमीशन की गाइडलाइंस, हम उसको फॉलो करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं 2017 की। वो कहते हैं कि जो जितनी भी दवाइयाँ हैं वो 130/80 तक हमारा ब्लड प्रेशर ले आए, ये कहती है। फिर यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन 2018 की गाइडलाइंस है। ये बताती हैं कि कॉम्बिनेशन में दवाइयों को इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और जो अर्ली अर्ली ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको ये ज़्यादा प्रेफर करती है। नेक्स्ट प्लीज़। आगे है डिसलिपिडीमिया, हमारी बॉडी के अंदर जो चर्बी जम जाती है, जैसा आपको बताया कोलेस्ट्रॉल वगैरह को मैनेज करने के लिए। उसमें भी हमारे पास अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की गाइडलाइंस है, कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइंस है, जो कि कहते हैं स्टैटिन थेरेपी अगर आप यूज़ करते रहोगे ना तो आप ठीक रहोगे। अब वो लोग भी आप देखोगे कि अगर 40+ होंगे तो डॉक्टर्स उन्हें ना ये स्टैटिन दे देंगे लिपिगेट के नाम से, ठीक है, रोजुआ के नाम से, ये डिफरेंट होती हैं जो कि हेल्प करती रहेंगी। फिर हाई इंटेंसिटी स्टेटिन होते हैं, अटोरवा स्टेटिन और रोजुआ स्टेटिन, वो भी हमारी बॉडी के अंदर पेशेंट के रिस्क को कम करते हैं। फिर यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी कहती है कि लिपिड लोअरिंग जो ड्रग्स होती हैं वो उनका टारगेट होना चाहिए LDL, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं 55 mg पर डेसीलीटर से कम रखना। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट फेलियर की गाइडलाइंस है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी कहता है कि जो हार्ट फेलियर है वो 2022 की गाइडलाइंस बता रही हूँ आपको कि उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ABCD। तो ए वाली जो दवाइयाँ हैं उसमें ARNI जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेफर किया जाए, जिसमें आपको बताया था वेलसार्टन के साथ सेक्यूबिट्रिल होती है दवाई, आजकल नई चल रही है मार्केट में। फिर बीटा ब्लॉकर्स यानी कि हार्ट बीट को कम करने की दवाइयाँ, कार्बिडाइलोल, बाइसोप्रोलोल कनकोर के नाम से आती है, मीटोप्रोलोल, सक्सीनेट सॉल्ट मी प्रेसर के नाम से आता है, ठीक है। तो ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जाए। और इसके बाद हमारे पास जो है वो कहा जाता है कि एक स्टैंडर्ड थेरेपी है हार्ट फेलियर में के, जो कि हमारी बॉडी, हमारी किडनी की हेल्थ को भी अच्छा रखती है। SGLT2 इनहिबिटर्स है, बेसिकली ये दवाई डायबिटिक पेशेंट्स में दी जाती है जो कि उनकी किडनी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें हमारे पास है डेपा ग्लीफ्लोजिन जो कि डेपा के नाम से आती है, ये हमारी किडनी को भी ठीक रखती है। और एम्पाग्लीफ्लोजिन है, ठीक है, ये और ये दवाइयाँ नई हैं, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को दी जा रही हैं और इससे हार्ट किडनी भी सी ठीक रहती है, ठीक है। और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो भी कहती है कि अर्ली ट्रीटमेंट्स किए जाए। इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस की गाइडलाइंस है 2021 की गाइडलाइंस फॉर द क्रोनिक आर्टरी डिजीजेस एंड क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। फर्स्ट लाइन थेरेपी में बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट्स का यूज़ किया जाए और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल को यूज़ किया जाए। और इसकी डोज भी लिखी हुई है 81 से 162 mg पर डे। और ECS गाइडलाइंस है कॉर्नरी सिंड्रोम्स के लिए, वो कहता है कि हमारा जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो 55 mg पर डेसीलीटर से कम हो। नेक्स्ट प्लीज। कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क प्रिवेंशन गाइडलाइंस है, वो कहते हैं कि जो प्राइमरी बीमारियां होती हैं उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक किया जाए, स्टैटिन थेरेपी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप पेशेंट को एस्प्रिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हाई रिस्क पेशेंट को। और ECS में 2021 गाइडलाइंस कार्डियोवास्कुलर प्रिवेंशन, ये भी जो है कहती है कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट मॉडल्स को यूज़ करके तो हम लाइफ टाइम मतलब हम पेशेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाएं, पेशेंट्स को ये चीज़ बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें अपनाओगे तो आपके हार्ट की हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद हमारे पास है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द कार्डियोवास्कुलर फार्माकोथेरेपी।
अब जो नई नई दवाइयाँ आजकल चल रही हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए, जो आप रिसर्चर हैं तो आपको ये हेल्प करने वाली हैं। जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और फार्माकोजेनोमिक, इस पे बहुत काम हो रहा है। इसकी डिटेल्स आप लोग बाद में भी पढ़ लीजिएगा, ये समझ लें। मतलब कि आप जैसे मैं हूँ, मुझे अगर कोई बीमारी है तो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ही दवाई बनाई जाए, ठीक है, और मेरी डीएनए को माइंड में रख के कोई दवाई बनाई जाए। तो कोई दूसरा पर्सन है, उसके मुताबिक उसके डीएनए को माइंड में रख के दवाई बनाई जाए। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इन सब के मुताबिक जो है वो इन चीज़ों को देखा जाता है कि कैसे जो है वो हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब आप इतनी कितनी पूरी दुनिया में कितनी आबादी है, आप मुझे बता सकते हैं? ग्लोबली आई थिंक बिलियंस में है, ठीक है। तो क्या आप इतने लोगों के लिए सेपरेट दवाई बनाओगे? फिर तो ये कस्टमाइज चीज़ आ जाएगी, जो बनवाना चाहता है वो बनवा ले। इसके बाद SGLT2 इनहिबिटर्स फॉर द हार्ट फेलियर एंड CV प्रोटेक्शन, ये आपको मैंने बता दिया। डैपा जो दवाई है वो डायबिटिक कंट्रोल और हार्ट फेलियर को भी ठीक करती है, पेशेंट को बचाती है, उसकी किडनी को भी डैमेज नहीं होने देती। फिर माइक्रोबायोम और मेटाबोलोमिक्स आ जाती हैं, जिसमें हम हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोबायोम है उसको माइंड में रख के तो दवाइयाँ बनाते हैं। यानी हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी हमारी हेल्प करता है हमारी गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो इन चीज़ों को भी हम टारगेट कर सकते हैं। फिर टारगेटेड लिपिड लोअरिंग थेरेपीज है कि जो डायरेक्टली सिर्फ लिपिड को ही टारगेट करें, इर्द गिर्द की दवाइयों को, इर्द गिर्द के सेल्स को टारगेट ना करें, ठीक है। इसमें हमारे पास है बेम्पिडोइक एसिड, जो कि नॉन स्टेटिन ऑप्शन है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद एक और ड्रग है इंक्लीसिरिन, ठीक है, ये भी हमारी RNA थेरेपी की है, ठीक है, यानी हमारे डीएनए को टारगेट करके बनाई जाती है। फिर हमारे पास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर्स, जैसे मैंने आपको बताया सेक्यूबिट्रिल और वेलसार्टन को हम यूज़ करें एस इनहिबिटर्स के अलावा, तो हमें ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स आएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव नोएक नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स ओवर वारफरिन। उनको वारफरिन को हम बंद कर दें पेशेंट्स में इस्तेमाल करना, और जो नई दवाइयाँ हैं पेक्सिबान, रिवेक्सो, रिवा रोग्जामान, ठीक है, डैबी ग्रेटैन, ठीक है, डैबी गेट्रैन, ये 3 दवाइयाँ। और इसके अलावा भी है जो कि हमारा इंटरनेशनल जो नेशनल रेट होता है उसको भी ये कम करते हैं, ठीक हो गया। दैट्स ऑल अबाउट द cardiovascular medicines. Okay, now it's a reminder and an opportunity for all of you that you can join our diploma in emergency medicine. I will be the trainer, and मिनिमम सीट्स है 15। 6 मंथ्स का जो है ये आपका ड्यूरेशन है। 90 क्रेडिट आवर्स है, दिन में हफ्ते में 2 से 3 दिन मैक्सिमम जो है वो क्लासेस होती हैं। तो जो लोग जॉबियंस हैं तो उनके लिए भी कोई इतना मसला नहीं होगा इसको ज्वाइन करना, जूम पे क्लासेस होगी। आप देख सकते हैं कि आप क्यों इसको ज्वाइन करें और कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारा क्राइटेरिया आपको पता चल जाएगा। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए जो नंबर है उस पर भी कांटेक्ट करके तो इसके बारे में जो है वो पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या कोई भी हेल्थ केयर फील्ड से, और अल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह, नर्सिंग है, कुछ भी है, तो आप इस प्रोफेशनल डिप्लोमा को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। अब आपको क्या फ़ायदा होगा हमें ज्वाइन करने का? तो हाई डिमांड है, क्रूशियल रोल है आपका, ठीक है। आपको पता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को मैनेज करना कितना मुश्किल है। नेक्स्ट प्लीज़।
ट्रोमा, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक आए दिन लोगों को होते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, रोड एक्सीडेंट्स है, उसमें जो है वो हेल्प होती है। और मेडिकल इमरजेंसीज में भी आप जो है वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। फिर एक्सपेंडेड स्किल सेट एंड स्पेशलाइजेशन, जिसमें रिससिटेशन, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ट्रॉमा केयर, टॉक्सिकोलॉजी, क्रिटिकल केयर, इन सब में। और ब्लड प्रेशर की जो सिनेरियोज हैं, आप एज अ टीम वर्क भी काम कर सकते हैं, और ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकती है एज अ इमरजेंसी मेडिसिन में अगर आप एक्सपर्ट हैं, और कैरियर एडवांसमेंट में। और वर्ल्ड वाइड आप हॉस्पिटल्स, एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स, प्री होस्ट हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, डिज़ास्टर मेडिसिन और टेली मेडिसिन में। ओके मेंबर्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का नेक्स्ट प्लीज, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ इट्स योर टाइम। और आप डिप्लोमा के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और वैसे भी जो है इस वेबिनार के रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। यस मेंबर्स, कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों की तरफ से तो आप लोग लास्ट में पूछें। मोस्ट वेलकम। जी मेंबर्स, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को पूछने चाहिए। मोस्ट वेलकम। कॉमन होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। 75 mg एवरेज होती है, दिन में एक दफ़ा दे दी जाए तो बेहतर है। आईसीयू में तो दो दो तीन तीन टैबलेट्स को क्रश करके तो पेशेंट को, इवन के आईसीयू में क्या करते हैं कि उसको पानी में घोले बगैर भी जो है वो जो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती हैं पेशेंट को खिला देते हैं, 2-3 इकट्ठी। तो वो है पेशेंट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटली काम करनी होती है मेडिसिन, दैट्स वाई। तो आईसीयू में डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी तो आपकी ये है कि आप अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको एक एज मिल जाता है कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आपको इतनी मेडिसिन का पता चल जाएगा। आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सबकी हेल्प कर दें। अगर आप किसी एक पर्सन की भी जान बचा लेंगे ना अपने नॉलेज से, तो आपने समझें कि इंसानियत की खिदमत कर दी। बट या आप इस डिप्लोमा के साथ जो है ट्रोमा सेंटर्स में काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आप क्लिनिकल सेटिंग पे काम कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल में क्लिनिकल सेटअप्स होते हैं ना, जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल के, जो कि डोजेस देख रहे होते हैं, जो ड्रग एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप जो 1122 है, या अगर आप दूसरे किसी शहर किसी मुल्क में हैं तो उनकी जो इमरजेंसी होती है उनमें जो है वो आपकी जॉब्स जनरेट होती हैं।
इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है, अगर पेशेंट को नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो 50 से 75% होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमारे हार्ट में जितना ब्लड आता है वो इतने परसेंट बाहर ज़रूर निकलना चाहिए, ओके। बाकी अगर जिन लोगों को वेल्स का इशू है तो उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिनको जिनको इरिथमियाज है उनकी डिस्टर्ब हो सकती है, जिन लोगों को हार्ट फेलियर का इशू है उनकी तो वाकई बहुत डिस्टर्ब होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेंबर्स। Any other questions? Okay members, thank you so much. Have a good day ahead. Allah Hafiz, fi amanillah.